Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing questions, learning things. That is great because that is what you require. For now, let us focus on this question. And first, we will read the question carefully. We will try to understand question में हो क्या रहा है. And after that, we will apply whatever we know. Okay, so let's start. In a parallel plate capacitor, the separation between two plates is maintained by a dielectric of dielectric constant K and thickness D. So let's say this is a plate. It has an area of A that is not given in the question, but separation is given. Let's say it is D and there is a dielectric constant K filled here. Okay, so media between these two plates is basically filled with a dielectric of constant K. Now what else is said? Capacitance of the capacitor is C naught. So C naught is what basically? C naught is K epsilon naught A by D, right? So this thing we need to keep in mind because in aggregate it is saying capacitance is C naught. So it must be this one is applied across if applied potential difference is nearly zero. So when potential difference, yani ki when capacitor is not connected to any battery, its capacitance is given like this. At higher potential, the attractive force between the plates compresses the dielectric. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है तब कैपेसिटेंस सी नॉट है और हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है टोटली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री सो इट मस्ट बी द केस लाइक इफ पोटेंशियल इज गेटिंग अप्लाइड देन ज्योमेट्री इज गेटिंग अफेक्टेड राइट अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है एट हायर पोटेंशियल द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्लेट्स compresses the dielectric so dielectric material here used is elastic so when the material will feel force it will get compressed and if this length is getting compressed in that case separation between plate will decrease and if d is going to decrease capacitance will increase ठीक है so this one will increase है ना अगर ऐसा होगा तो वो इंक्रीज करेगा so that is the case here and reduces the gap between plates change in k can be neglected and because of this compression we are neglecting the change in k ठीक है find the change in capacitance when a battery of v volt is connected so we are asked ki what will be the change in capacitance if battery of v volt is connected across it अब देखो initially it is like this ठीक है ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें अब आपने क्या किया इसके बीच लगाया एक प्लेट एक बैटरी so you are giving it some charge and as positive charge will accumulate here and negative charge will accumulate here let's say the battery has a potential of v is that given in the question yeah so battery has a potential of v and its capacitance was c naught so how much charge will go there q is equal to c naught v so this is the amount of charge that it is going to receive and because of this charge force between plates will operate so वो force कैसा होगा आपको भी पता है ये जो plus charge का plate है that will have a electric field of sigma by 2 epsilon naught and because of this electric field it will attract नेगेटिव चार्ज प्लेट ठीक है एग्रीगेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लेकिन अगर हमें फोर्स निकालना है ना बिकॉज ऑफ वन चार्ज ऑन द अदर सो वी नीड टू सी ओनली what is the electric field generated by one charge system then we will calculate what is the force acting on another because of this electric field डन है सो फोर्स का अगर आप फॉर्मूला लिखो तो इस पे चार्ज क्या है q है मैग्नीट्यूड वाइज अट्रैक्टिव फोर्स इट विल बी so q into sigma by 2 epsilon naught so that you will be writing as q square by 2a epsilon naught ठीक है सो इस फोर्स की वजह से क्या होगा दिस प्लेट विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव सिमिलरली पॉजिटिव विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फोर्स की वजह से जो बीच का डायलेक्टिक है लेट्स ड्रॉ द डायलेक्टिक लाइक दिस ये मैंने डायलेक्टिक बनाया ठीक है सो बेसिकली पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है मीन्स इस डायलेक्टिक पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एंड इधर के डायलेक्टिक पे भी इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ठीक है so you know that when two things are getting compressed like this what will happen there will be change in length because this is elastic material and that change in length will be equal to how much compressive force that is f here area of cross section will be a because this dielectric is filled in between the plates so dielectric उतना ही एरिया कवर कर रहा है जितना प्लेट का है सो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू वाई change in length of dielectric because of this compression there will be change occurring so y delta x by t where d is the original length
because along this length compressive force is acting, so this will become the length along which force is getting operated. So this is this, right? And from here we will be getting delta x. अब delta x तुम्हारा क्या दिखेगा? Delta x will be f d by a y, ठीक है? And because of this delta x, I mean length is going to decrease, capacitance will change, right? So अगर आप initial capacitance लिखते हो C1 C naught, which was C naught initially, so that was equal to K epsilon naught A by D. What will be potential capacitance after you have connected it with battery of voltage V? So its capacitance will become K epsilon naught A by D minus delta X. इट इज गोइंग टू बी दिस वन, राइट? अब आप देखो इसको सही से सॉल्व करो, यू कैलकुलेट द डिफरेंस, सो सी डैश माइनस सी नॉट. इफ यू डू दिस व्हाट यू विल बी गेटिंग, के एप्सिलॉन नॉट ए को आप कॉमन लो सबसे पहले, देन 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी, सॉरी 1 बाई डी माइनस डेल्टा एक्स minus 1 by d, right? Some sort of this thing you are getting. अब देखो यहाँ पे एक काम करो, we need to use something, I mean some approximation are given here. By a small amount it is said that compression is happening by a small amount, so we can use binomial expansion. I will show you how. 1 by d, d को common ले लो, 1 minus delta x by d माइनस 1 बाई डी. अब देखो आप डी को भी कॉमन ले लो, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सो दिस इज सी नॉट बेसिकली, एंड दिस इज 1 बाई 1 माइनस, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस डेल्टा एक्स बाई डी. 1 माइनस डेल्टा एक्स बाई डी का पावर कितना होगा? माइनस 1 माइनस 1. So if you look for it carefully, आपको क्या दिख रहा है? Delta x by d will be far less than 1, right? And if it is far less than 1, because delta x given in the question is very small, it is said, right? So if this is very smaller than that of this, then you can write k epsilon naught a by d. I mean if this is this, जैसे binomial expansion आपने पढ़ा होगा, if 1 plus x to the power n is given, then we can write it as 1 plus nx if x is far less than 1. So here is the case, right? So we can do that. 1 plus हो जाएगा delta x by d minus 1. So this is how much? 1 cancel होगा, and this is k epsilon naught a by d into delta x by d. So this will be how much? K epsilon naught a by d क्या हो जाएगा? C naught. So this is basically C naught delta x by d. This is the change in capacitance. Now we need to put delta x here in order to calculate this what? This delta C. ठीक है? हमें यही करना होगा, right? So we need to do that. Let us go with this one. ठीक है? चलो आगे calculate करते हैं. So we know कि हमने डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाला था, है ना? एफ डी बाई ए वाई. सो चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? एफ डी बाई ए वाई. अब आप एक काम करो, हमें क्या निकालना था? डेल्टा सी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सी नॉट डेल्टा एक्स बाई डी. सो डेल्टा सी इज हाउ मच? सी नॉट डेल्टा एक्स बाई डी. चलो अब पहले सबसे पहले हम फोर्स को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो फोर्स को अगर आप पुट करोगे, फोर्स को क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? सो दैट विल बिकम क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू d बाई a y. डन है? सो दिस इज योर डेल्टा x. अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में a नहीं गिवन है, राइट? डन है? क्वेश्चन में ए नहीं गिवन है. सो व्हाट वी नीड टू, व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस वी नीड टू मेक? एक काम करो आप, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, एक और डी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो. सो यहाँ पे एक और डी लिखो. सो हियर वी नीड टू राइट डी, एंड देन यू डू वन मोर थिंग, यहाँ पे के स्क्वायर लिख लो आप. तो यहाँ पे भी के स्क्वायर लिखो आप. क्यों कर रहे हैं ऐसा? ए को हटाने के लिए. सो यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का होल स्क्वायर इंटू के भी कर लो, के का होल स्क्वायर, ठीक है? एंड देन वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट? देन वी विल बी लेफ्ट विथ डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर, एनीथिंग एल्स, y विल बी लेफ्ट, एंड देन 1d विल बी लेफ्ट, राइट? सो देखो एप्सिलॉन नॉट a बाई d, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c नॉट का स्क्वायर. सो q स्क्वायर बाई 2 c नॉट का स्क्वायर एंड k स्क्वायर y
T. We need to make changes very carefully. So डेल्टा C का वैल्यू क्या होगा? C नॉट इंटू डेल्टा X. डेल्टा X क्या है हमारा? Q स्क्वेयर बाय, अगेन Q is not given, we will change that also. 2 C नॉट का स्क्वेयर K स्क्वेयर Y D. ठीक है, C नॉट इंटू डेल्टा X बाई D. सो एक काम करो, यहाँ पे बाई D भी करो. ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, एक सी नॉट से एक सी नॉट होगा तुम्हारा कैंसिल. ठीक है, सो इसको आप बाई में सी नॉट लिखोगे, सो क्यू स्क्वेयर बाई 2 सी नॉट के स्क्वेयर वाई डी का स्क्वेयर इंटू 1, राइट. सो दिस इज डेल्टा एक्स वैल्यू, वी हैव केप्ट इट. ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, ये वाला के स्क्वायर हमने यूज किया था. एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे देखो, ये वाला के स्क्वायर हमने यूज कर लिया था ना, न्यूमरेटर का के स्क्वायर बचा हुआ था, तो यहाँ पे के स्क्वायर है, सॉरी. सो इसको आप कट करो, यहाँ पे के स्क्वायर है, सो ये कट करो, क्यू स्क्वायर के साथ के स्क्वायर है, इसको कट करो. सो दिस इज दिस. ठीक है, अब क्या करना चाहिए मुझे? वाई 2 सी नॉट इंटू डी का स्क्वायर इंटू वाई. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना तुम लोग. अब देखो, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू को लिख सकते हैं सी नॉट वी, राइट. सो यहाँ से क्यू स्क्वायर को आप लिख दो सी नॉट स्क्वायर, दैट विल बिकम वी स्क्वायर, एंड दिस इज योर हाउ मच? के स्क्वायर. कहीं पे एप्सिलॉन नॉट भी था, वी हैव मिस्ड इट आई गेस. ओके, हाँ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का स्क्वायर किया है ना, तो एक एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा. सो वी आर लेफ्ट विथ एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो. देखो, कैलकुलेशन थोड़ा सा मैनिपुलेशन ज्यादा है, सो ऐसा. ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मच? दिस विल बिकम 2 सी नॉट डी स्क्वायर वाई. अब आप आंसर लिख लो, इसको कितना आएगा? सो सी नॉट वी स्क्वायर के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 डी स्क्वायर वाई. सो दिस विल बी द वैल्यू. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इसके बाद क्या होगा, इसके पास हमने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया, एंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटेंस इंक्रीज. और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है तो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होना चाहिए टू द लॉन्ग इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी. एंड इफ एक्स्ट्रा चार्ज इज गेटिंग फ्लोन, तो क्या होगा सिस्टम में? तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. यहाँ पे देखो, ये जो डायलेक्ट्रिक है ना, दिस इज अ इलास्टिक मटेरियल, और ये कॉम्प्रेशन तुमने दिया. चलो, इसको समझाने के लिए ना एक सिंपल सा केस लेते. आई मीन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जाओ. फोर्स पर यूनिट एरिया हम क्या लिखते हैं? वाई डेल्टा एक्स बाई एल, ऐसा लिखते हैं ना. सो यहाँ से फोर्स को आप लिखो, फोर्स क्या दिखता है हमें? ए वाई बाई एल डेल्टा एक्स. ठीक है, सो कंपेयर करो इसको स्प्रिंग के फोर्स से. स्प्रिंग फोर्स से ये एफ डेल्टा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. sort of f is directly proportional to x, some sort of thing is happening over here. और इसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? जैसे एक ऐसा कुछ मान लो, रॉड है, इलास्टिक रॉड है, उसके ऊपर ऐसा फोर्स F लगाया. सो अगर आपने ऐसा फोर्स F लगाया ना, देन बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, व्हाट विल हैपन? इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा एक्सटेंड तो होगा, डेल्टा एक्स लेंथ से एक्सटेंड हुआ, उसके बाद वो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये रॉड की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से देर इज सम फोर्स हियर गेटिंग जनरेटेड, विच इज दिस वन. ठीक है, कह सकते हैं उसके रिस्पॉन्स में ये आया है, एंड इट विल स्टे एट दिस इलोंगेशन. ठीक है, धीरे धीरे इलोंगेट किया, एंड इट विल गेट इलोंगेटेड अप टू डेल्टा एक्स ओनली फॉर दिस फोर्स एफ. लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा फोर्स कुछ और दिया, सपोज कर लो इसके साथ कुछ डेल्टा एफ फोर्स को ऐड कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? अगेन इट विल गेट एक्सटेंडेड एंड मेंटेन न्यू इक्विलिब्रियम. ठीक है, आफ्टर गेटिंग एक्सटेंडेड बाय सम मोर डिस्टेंस. सो यहाँ पे भी कैपेसिटर का जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है ना, some extra charge will flow, and because of that extra charge what will happen? Some extra force will get felt. ठीक है, and because of that some extra force get felt, what will happen? Again, by some other distance, this separation will decrease. So delta x से कुछ और separation घटेगा. Done है? So that will again make the capacitance more higher, and again some more charge will flow, and it will keep on happening until compressive force is such that it is not able to break the elasticity of the material. I mean, आप लोग फ्रैक्चर पॉइंट पढ़े होगे, सर्टेन पॉइंट के बाद चीजें फ्रैक्चर कर जाती हैं. ठीक है, so some sort of that thing will happen here. I mean,
You can do more with this question. You can always sit with this question and try to understand कि actually क्या हो रहा है system में. That is more important rather than getting answer and solving question. ठीक है? I hope you have understood it. I hope conceptually it was sound and clear. But if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care. Bye bye. And keep on solving more number of questions.